Hello everyone, welcome to the lecture series of Theory of Computation. In this video we'll learn about types of finite automata, that is about deterministic finite automata and non-deterministic finite automata. So let's begin. So finite automata can be divided into two different categories, FA with output and FA without output. And without output. FA with output can be further divided into two categories, that is Mealy machine and Moore machine. And FA without output can be further divided into three categories, which are DFA deterministic finite automata, NFA non-deterministic finite automata and epsilon NFA. Now in this video we learn about and focus on these two, that is DFA and NFA. So we have practiced various questions related to deterministic finite automata in a previous video. Now whether it's DFA, whether it's NFA or whether it's epsilon NFA, any finite automata consists of a quintuple. Quintuple consists of 5 different things, which are Q, alphabet set, transition, Q naught and F. Now what does these all represent is, Q represents the set of states. This represents the alphabet. This represents the transition. Q naught represents the initial state. And F represents the final state. Now let's understand this with the help of an example. Suppose I create a DFA for a language, let's say this is state A. For transition A, we go to a state B. Now B is also my final state. For A and B, we remain over here, and on state A for a transition B, we go to another state, let's call it C, and for A and B, we remain here. Now this is my DFA. We have shown transition for all the alphabets and for every state. So this is consisting my alphabet A and B. Now in respect to this DFA, जो अभी हमने quintuple लिखा, उसका क्या मतलब है? Q represents set of all states. So that means A, B, C. Alphabet is A and B. Then comes the transition. Now we'll see this, what do we mean by transition later on. Let's cover the remaining two. Q naught represents the initial state, which is A. And F represents the final state, which is B. So basically, can we say कि जब अभी हम DFA की बात करते हैं, that F is nothing but a subset of Q only. Why we can say this? जो हमारा फाइनल स्टेट्स होंगे हमारे DFA के अंदर, वो एक भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, और जितनी हमारी टोटल स्टेट्स हैं उसके इक्वल भी हो सकती हैं. तो हो सकता है हमारा कोई DFA इस टाइप का हो जिसमें A भी हमारी फाइनल स्टेट हो और C भी फाइनल स्टेट हो, या कोई ऐसा DFA हो जिसमें सिर्फ एक ही फाइनल स्टेट हो. सो वी कैन से दैट F इज अ सबसेट ऑफ Q. नाउ जितनी भी हमारी कैटेगरीज हैं FA की विदाउट आउटपुट, उसमें ये चार चीज Q, alphabet, Q naught and final state, these all remain same. So these are basically common for both DFA, NFA, and we can say epsilon NFA also. So the only thing varies is the transition.
So now let's see what do we mean by this transition function. So this is the transition function. Now what do we mean by transition function is, when it comes to DFA, transition function means, DFA के केस में ट्रांजिशन फंक्शन का क्या मतलब है कि जितनी भी हमारी सेट ऑफ स्टेट्स हैं Q, उसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें अल्फाबेट सेट के साथ, तो करके देखते हैं। अभी प्रीवियस एग्जांपल में हमारी स्टेट्स क्या थी, Q, A, B, C, और हमारा अल्फाबेट सेट क्या है, हमारा अल्फाबेट सेट है AB। अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, हमें Q मिलेगा, दैट इज सेट ऑफ माय स्टेट। सो लेट्स सी दिस। सबका पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो A का स्मॉल a के साथ, कैपिटल A का स्मॉल b के साथ, देन B का स्मॉल a के साथ, B का स्मॉल b के साथ, देन C का स्मॉल a के साथ एंड C का स्मॉल b के साथ। ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा एक सेट। अब हम ट्रांजिशंस देखते हैं कि हमारे डीएफए के अंदर क्या क्या ट्रांजिशंस थी। हम कह रहे हैं कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये इक्विवेलेंट होगा क्यू के। सो क्यू क्या है हमारा राइट साइड पे, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग क्यू क्रॉस प्रोडक्ट विद एप्सिलॉन एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग क्यू। क्यू के अंदर है हमारा ए, बी एंड सी। सो सबसे पहला ट्रांजिशन क्या है, कैपिटल ए का स्मॉल ए लेके हम जा रहे हैं बी पे एंड कैपिटल ए स्मॉल बी लेके हम जा रहे हैं सी पे। तो ये ट्रांजिशन हम इसमें दिखा देते हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए लेके हम जा रहे हैं बी पे एंड कैपिटल ए स्मॉल बी लेके हम जा रहे हैं सी पे। देन नेक्स्ट ट्रांजिशन क्या है, बी पे ए लेके हम बी पे ही रहे, बी पे बी लेके हम बी पे ही रहे, सी पे ए लेके हम सी पे ही रहे एंड सी पे बी लेके भी हम सी पे ही रहे। ये ट्रांजिशंस दिखा देते हैं। बी पे ए लेके हम चले गए ये बी पे बी लेके भी हम बी पे गए, सी पे ए लेके हम सी पे गए एंड सी पे बी लेके भी हम सी पे गए। सो वी कैन सी डीएफए के केस में क्या है, जितने भी अल्फाबेट सेट के लेटर्स हैं हर एक के लिए ट्रांजिशन है एंड हर एक के लिए एक ही ट्रांजिशन है। ऐसा नहीं है कि कैपिटल ए पे हमने ए लिया तो हम बी पे गए और कैपिटल ए पे ए लेके हम ए पे भी चले गए। तो एक से ज्यादा ट्रांजिशन एक पर्टिकुलर लेटर के लिए, एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए अलाउड नहीं है इन केस ऑफ डीएफए। So this is the transition function, this is DFA, where for every state and every alphabet there is only one transition function. Now अब हम इसे DFA क्यों कहते हैं, हम इसे DFA इसलिए कहते हैं because on seeing any input we always go to one state. Always go to one state. Now in computer software DFA is very important because these DFA can be directly modeled as softwares. Now suppose एक और example देखते हैं DFA का। Suppose मुझे बनाना है DFA for a language of set of all strings over alphabet AB of length 2. Now इसके लिए अगर हमें DFA बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया हमारी इनिशियल स्टेट से विच इज A। अब हमें दो लेटर्स मिलने पर ही कोई भी लेटर को एक्सेप्ट करवाना है। तो A या B हमें कुछ भी मिला, हम चले गए एक दूसरी स्टेट B पे। अगेन B पे हमें A या B कुछ भी मिला, हम चले गए एक नेक्स्ट स्टेट C पे। सो दिस इज आर डीएफए। टू लेटर्स कोई भी मिल सकते हैं ए बी में से और चार ही स्ट्रिंग्स हैं जो एक्सेप्ट होंगी विच आर ए बी ए एंड बी बी। सो ये चारों स्ट्रिंग्स इससे एक्सेप्ट हो जाएंगी। बट अभी तक ये डीएफए नहीं है। क्यों? बिकॉज ए के लिए ए और बी के लिए ट्रांजिशन है, बी के लिए है, बट सी के लिए हमने कोई ट्रांजिशन नहीं दिखाया है कि अगर सी पे कोई फर्दर लेटर आता है तो हमें क्या करना है। लेट्स से अगर सी पे कोई फर्दर लेटर आता है दैट मीन्स थर्ड लेटर, तो वो क्या होगा, वो स्ट्रिंग तो रिजेक्ट होगी बिकॉज इट इज कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन टू लेटर्स। तो अगर सी पे ए या बी कुछ भी आता है तो हमने एक नेक्स्ट स्टेट पे उसे भेज दिया, लेट्स कॉल इट डी।
अब अगर इसके बाद कितने भी लेटर्स आते हैं, 4 लेटर्स, 5 लेटर्स, 6 लेटर्स, वो सारी स्ट्रिंग्स क्या रहेंगी, डी पे ही रहेंगी एंड दे विल ऑल बी रिजेक्टेड। तो ये जो डी स्टेट है इसको हम कह सकते हैं दिस इज नथिंग बट अ डेड स्टेट। So we have previously seen also what do we mean by dead state? Dead state का मतलब एक ऐसी state, from that state we will not be able to ever reach the final state. That state is known as the dead state, जिससे कोई भी तरीके से हम final state तक नहीं पहुंच सकते। So this is what we have to show in DFA. हमें सिर्फ उन strings को नहीं दिखाना जो हमारी strings accept होंगी, हमें उन strings के बारे में भी दिखाना है जो हमारी strings reject होंगी when we draw our DFA. सो वी से कि हमारी कोई भी स्ट्रिंग जो होगी, वन टर्मिनोलॉजी इज स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस। सो स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है, कोई भी स्ट्रिंग हमारी एफए से तब एक्सेप्ट होगी इफ वी एंड अप इन द फाइनल स्टेट आफ्टर स्कैनिंग द कंप्लीट इनपुट। एंड द अदर टर्मिनोलॉजी इज लैंग्वेज एक्सेप्टेंस। व्हाट डू वी मीन बाय लैंग्वेज एक्सेप्टेंस नाउ? So language acceptance means कोई भी language is accepted if all the strings are rejected. So this is what we mean by language acceptance कि जो भी strings language के अंदर है they are accepted by the finite automata and all the strings which are not in the language are rejected by the finite automata. So this was all about the DFA. Now we come to the next category of finite automata which is NFA. Now NFA का क्या मतलब है? सपोज मुझे NFA बनाना है फॉर अ लैंग्वेज दैट स्टार्ट्स विद ए, स्टार्ट्स विद ए। तो इसका क्या मतलब है, स्टेट ए लिया, हमें ए मिला, तो हम चले गए एक दूसरी स्टेट बी पे, और ए अभी कुछ भी आए इट विल रिमेन इन द फाइनल स्टेट। So this is an NFA, right? Now क्यों हम इसे NFA कह रहे हैं? This is why not a DFA, because we haven't shown कि अगर हमें स्टेट A पे B मिलता है तो हमें क्या करना है, right? So basically अगर मुझे कोई स्ट्रिंग मिलती है AB, now this string हमारी इस NFA से एक्सेप्ट होनी चाहिए, it is part of the language, it is starting with A। तो कैसे इसका ट्रांजिशन होगा? हमने इनिशियल स्टेट से स्टार्ट किया, हमें A मिला, हम B पे चले गए, हमें देन B मिला, हम B पे ही रहे, right? So we end up in the final state, we say that the string is accepted. But अगर हमने कोई string है like this BA, now ये string reject होनी चाहिए इस language से because it is starting with a B। तो हमने A state पे हैं हम, हमें B मिला, we don't know what to do, so we call it as phi। So phi basically बता रहे हैं कि हमें कोई knowledge नहीं है what action should we take कि अगर हम state A पे हैं और अगर हमें letter B मिलता है तो। अब अगर इसी लैंग्वेज के लिए मुझे DFA बनाना है तो हम DFA कैसे बना देंगे, हम सिर्फ जो A के लिए B का ट्रांजिशन रह गया था उसको कंप्लीट कर देंगे। तो स्टेट A पे है, A मिलता है तो हम B पे चले गए, B इज माई फाइनल स्टेट, A या B के लिए हम इसी पे रहे। और अगर हमें स्टेट A पे B मिलता है तो हम एक नई स्टेट C पे आ गए और A B के लिए हम इसी पे रहे। सो दिस इज DFA फॉर द सेम लैंग्वेज। सो बेसिकली कैन वी से कि NFA के अंदर वो सारे वर्ड्स जो हमारे रिजेक्ट होंगे दैट वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय माय डेड स्टेट इन द DFA, राइट? सो NFA के अंदर हमारी कौन सी स्टेट्स मिसिंग होती है? डेड स्टेट, जो हमारी रिजेक्शन को इंडिकेट करती हैं जब हमारे DFA को वो पर्टिकुलर वर्ड या वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करना होता। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ NFA। सपोज अगर मुझे NFA बनाना है फॉर अ लैंग्वेज, लेट्स कॉल इट L2 लैंग्वेज दैट कंटेन ए। नाउ सिर्फ ए होना चाहिए उसके अंदर, फ्रंट में, बैक में, मिडल में, कहीं पे हमें कुछ नहीं दिया हुआ। तो दैट मीन्स हम NFA कुछ इस टाइप से बना सकते हैं, स्टेट ए है, हमें ए या बी मिलता है, हम ए पे ही रहे, हमें ए मिल जाता है बस कहीं पे भी, तो हमारी स्ट्रिंग क्या होगी? हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, राइट?
ए या बी फर्दर कुछ भी मिले, तो ए कहीं पे भी आए, बस ए के अगर हमें किसी तरह मिल जाता है, वी से दैट द लैंग्वेज विल बी एक्सेप्टेड। ये हो गया NFA फॉर दिस लैंग्वेज। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज अगर मैंने लिया कोई L3 लैंग्वेज दैट सेज लैंग्वेज दैट एंड्स विद ए, राइट। सो इसके लिए हम NFA किस टाइप से बना सकते हैं? A, this is my initial state, now it is saying ending with an A, तो स्टार्टिंग में कितने भी A या B मिल जाए, बट एंड में अगर हमें A मिल गया, अब इसके बाद कुछ नहीं आना चाहिए। सो दिस इज माई B is representing my final state. सो लेट्स से अगर हमने कोई स्ट्रिंग ली A, जिसको हमें देखना है कि ये एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। अगर मैंने इससे सिर्फ लेटर लिया A, नाउ वी नो कि ये लेटर एक्सेप्ट हो जाएगा, इट इज एंडिंग विद ए एंड स्टार्टिंग विद ए, बोथ एंडिंग विद ए एंड स्टार्टिंग विद ए सैटिस्फाइड बाय दिस लेटर। सो हम इनिशियल स्टेट पे हैं, हमें ए मिला, नाउ वी हैव टू ट्रांजिशंस। अगर हमें ए मिला तो ए मिलते ही हम चले गए बी पे, और अगर हमें ए मिला तो हम रहे ए पे, राइट। बी इज माई फाइनल स्टेट। सो वी से अगर किसी एक लेटर के लिए एक से ज्यादा ट्रांजिशंस हैं इन आर NFA, बट आफ्टर स्कैनिंग द कंप्लीट इनपुट, अगर हमें कोई एक भी फाइनल स्टेट मिल जाती है, वी से दैट द स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड। तो ए के लिए हमारे पास दो ट्रांजिशंस थे, बी का भी एंड ए का भी, बट सिंस बी इज आर फाइनल स्टेट, so we say that the string will be accepted. So if we end up in at least one of the final state, we say that the letter will be accepted. Now let's say अगर अब कोई हम ऐसी string लेते हैं जो इस language का part नहीं है, let's say we take AB string, so it is ending with B, not part of the language. तो A लिया, A state से start किया, initial state से हमें A मिला तो हमें दो transitions मिली, A पे भी गए हम और हम B पे भी जा सकते हैं। अब second letter हमें क्या मिला? B मिला। ए पे अगर हमें बी मिलता है तो हम ए पे ही रहे, और बी पे अगर हमें बी मिलता है तो हमें कोई नॉलेज नहीं हमें क्या करना है। नाउ नाइदर ए इज माई फाइनल स्टेट नॉर दिस फाई इज इंडिकेटिंग माई फाइनल स्टेट। सो क्योंकि एक भी हमें फाइनल स्टेट नहीं मिले, सो वी से दैट दिस पर्टिकुलर वर्ड इज रिजेक्टेड, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन DFA एंड NFA। सो NFA के लिए जो हमने जैसे हमने DFA के लिए ट्रांजिशन फंक्शन दिखाया, NFA के लिए भी हम ट्रांजिशन फंक्शन दिखा सकते हैं लाइक दिस, दैट Q क्रॉस प्रोडक्ट विद द अल्फाबेट। नाउ हियर इन केस ऑफ DFA वो हमें क्या देता था? Q देता था, विच इज सेट ऑफ ऑल स्टेट्स। इन केस ऑफ NFA इट गिव्स अस 2 to the power Q, विच इज रिप्रेजेंटिंग माई पावर सेट ऑफ Q, पावर सेट ऑफ Q। अब इसको भी एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज जो अभी हमने NFA बनाया है, इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ दिस इज माई NFA एंडिंग विद A। इसके लिए हम ये बनाते हैं, कितनी स्टेट्स हैं हमारी Q में? हमारे पास दो स्टेट्स हैं A एंड B। अल्फाबेट सेट क्या है हमारे पास? अल्फाबेट सेट है A B। तो क्रॉस प्रोडक्ट दोनों में कितने केसेस होंगे? 4 केसेस होंगे, AA, AB, BA एंड BB। नाउ पावर सेट ऑफ Q, पावर सेट का क्या मतलब होता है? ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ Q। सो क्या क्या पॉसिबल सबसेट्स हैं Q के? सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, सो बेसिकली 4 सबसेट्स आर पॉसिबल, phi, A, B and AB। Now let's do the transition। तो NFA के लिए क्या है? A पे अगर हमें A मिला तो हम A पे भी रहे एंड B पे भी गए, तो हमारे पास दो ट्रांजिशंस हैं। तो दैट मीन्स A के लिए हम दिखा सकते हैं AB का ट्रांजिशन। देन A पे हमें B मिला तो हम A पे ही रहे, A पे हमें B मिलता है तो हम A पे ही रहे। देन फॉर B none of the transition is defined, so that means B पे A मिलता है या B मिलता है तो हम चले गए 5 पे।
तो B पे A मिला तो हम चले गए 5 पे, B पे B मिला तो हम चले गए 5 पे, right? So this is representing cross product of Q with alphabet set gives us the power set of Q in case of epsilon, in case of NFA. So this is the main difference between DFA and NFA कि DFA के केस में जो भी ट्रांजिशन फंक्शन होता है, so सिर्फ ट्रांजिशन फंक्शन का ही वेरी होता है सिर्फ DFA और NFA में, रेस्ट ऑल रिमेन सेम, that Q with epsilon gives Q in case of DFA and Q cross product with alphabet set gives us the power set of Q in case of NFA. Now can we say कि this Q is a subset of 2 to the power Q only? जो Q है हमारा वो क्या है, वो सबसेट है पावर सेट का ही, right? So we can say that DFA is nothing but NFA only, but the reverse is not true. This 2 to the power Q is enclosing Q, but Q isn't enclosing 2 to the power Q. So हर एक DFA is NFA but not every NFA is a DFA. So this is all about this lecture. In the next video we'll start with the next topic. Thank you for watching this video. If you like this video then do like and subscribe my channel and share my video. Thank you.